हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक. Many of you would have given your group 1 and few papers were difficult, few papers were manageable, but guess what? Now group 1 is over. Your 4 papers are done. Just 4 papers are left. Hence, you have to forget about group 1. You need not worry about that. Now you have to completely focus on group 2. And many of you are only giving group 2. Hence, this SCMP is your first paper. यानी चाहे आपने ग्रुप 1 दिया हो या नहीं दिया हो, आई एम श्योर दैट यू ऑल आर एक्साइटेड टू राइट दिस पेपर ऑफ SCMP. लेकिन यू हैव स्लाइट फियर एंड एंजाइटी अबाउट दिस पेपर. बट डोंट वरी, आफ्टर दिस वीडियो आई एम श्योर आपका सारा फियर चले जाने वाला है, बिकॉज we are going to discuss how you should approach this 1.5 days, how much time you should give for each chapter, what are the things that you need to remember while writing the paper so that you complete your paper on time, what are the mistakes that you should avoid, and in the end we have a power packed motivation so that you all clear your exams with flying colors. इसीलिए वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको SCMP के पेपर में एग्जेम्पशन मिले और मिले. लेकिन आपने अगर ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये वीडियो को अभी लाइक कर देना सो दैट इट रीचेस टू योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड इट कैन इवन हेल्प देम. चलिए, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है. लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. First thing is, sir, how much time we should study in this 1.5 days and how to approach these chapters. So, अगर मैं आपको पूरा स्टडी प्लानर देता कि आप आज ये चैप्टर्स करो, कल ये चैप्टर्स करो, परसों ये चैप्टर्स करो, but that is very subjective because some of you will study today after your exams for 5 to 6 hours. Some of you might come and sleep and study tomorrow. तो ये कैसा subjective है, कौन कभी पढ़ता है? इसलिए what I have done, roughly each and every student has 22 hours in this 1.5 days. So 22 hours कैसे? So let me give you an example. Say after giving your exams today you have come to your home और आज आप 3 hours के लिए पढ़ाई करते हो. 3 hours today you will study. Tomorrow you have a full day, you have a fresh day. Hence you can easily study for 14 to 15 hours. Let us take 14 hours. So 14 plus 3 17 hours. And on the day of exams, you can easily remove 5 hours and study. So 3 plus 14 plus 5 which comes to 22 hours. So मैंने क्या किया है, मैंने आपको कभी क्या पढ़ना है वो नहीं दिया है, but I have given you how much time you should allot to each chapter. Hence, you can select the chapters which you want to study in whatever time, but you have to ensure that you complete that chapter within this given time frame. हमारे पास 11 चैप्टर्स है SCMP में जो हमें कंप्लीट करने हैं. उसके बाद मॉड्यूल 3 है और केस स्टडी डाइजेस्ट है. उसके बाद MTP और RTP है. ये सारी चीजें हमें 22 आवर्स में कंप्लीट करनी है. कैसे करेंगे? तो चैप्टर 1 आपको 1 आवर में कंप्लीट करना है. चैप्टर 2 और 3 आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना है. वैसे ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर 2 आवर्स में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर 2.5 आवर्स में. हेंस if you ensure that your chapter is completed within this given time period, then within 22 hours you will be easily able to complete your entire syllabus. Hence अभी आपको क्या करना है, ये टाइम फ्रेम लेके आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि मैं आज रात को कौन से चैप्टर्स पढ़ूंगा, कल मॉर्निंग में कौन से चैप्टर्स पढ़ूंगा, कल आफ्टरनून में क्या करूंगा, कल रात को क्या करूंगा और ऑन द डे ऑफ एग्जाम में क्या पढ़ने वाला हूं. Hence within 22 hours you have to complete each and every chapter. Now you will ask me, sir, चैप्टर में पढ़ाई कैसे करें, इतने टाइम में ये सारा चैप्टर, एक पूरा चैप्टर कैसे कंप्लीट करें? So don't worry, I'll discuss that also in this video, but हम वो आगे जाके डिस्कस करते हैं. Now let me move ahead. Second point is types of question. SCMP पेपर में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं सर? So 3 types of question can be asked in this exam. First type of question is fully practical question. आपको एग्जाम में पूरा सम आता है जो आपको सिर्फ सॉल्व करना है. अगर फुल्ली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छा है, स्कोरिंग है, राइट आंसर आया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन and you have to box the final answer. Don't forget to box the final answer and conclude in 1 or 2 lines. भले वो लोग ने पूछा या ना पूछा हो, लेकिन आप अगर 1-2 लाइन में कंक्लूजन लिखते हो then it gives a very good impression on the examiner कि he knows that where this answer can be applied. Hence अगर fully practical question है तो क्या करना है, सॉल्व करना है, बॉक्स करना है आंसर को और 1-2 लाइन में कंक्लूजन लिख दो कि आपने जो आंसर ढूंढा है वो कहां कैसे अप्लाई हो सकता है. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फुल्ली थियरी क्वेश्चन. एग्जाम में क्या आ सकता है, पूरा थियरी क्वेश्चन ही, हमें थियरी ही लिखना है. अभी सोचो, हमें खुद थियरी पढ़ने में इतना बोर होता है तो जो एग्जामिनर है, पेपर चेकर है, उसको थियरी पढ़ने में कितना बोर होगा. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू एंश्योर दैट वी मेक द पेपर इजी फॉर हिम टू रीड. हाउ विल वी डू दैट? अगर पेपर को इंटरेस्टिंग और इजी बनाना है
देन यू हैव टू राइट योर आंसर इन द हेड पॉइंट फॉर्मेट। आपको हेड पॉइंट्स लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करो, हेड पॉइंट लिखो उसको एक्सप्लेन करो। इससे क्या होगा, अगर आपके हेड पॉइंट्स करेक्ट है और एग्जामिनर ने देख लिया कि बंदे को हेड पॉइंट्स आते हैं, देन देयर इज अ चांस कि वो अंदर का पढ़े ही नहीं और आपको मार्क्स मिल जाए। हेंस इफ देयर इज अ फुल्ली थियरी क्वेश्चन, देन योर आंसर आइदर हैज टू बी इन द हेड पॉइंट फॉर्मेट और इट हैज टू बी इन अ पॉइंट वाइज फॉर्मेट। बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, आपको पॉइंट वाइज ही आंसर लिखना है। इससे आपका पेपर भी अच्छा दिखेगा और एग्जामिनर को भी इजी पड़ेगा पेपर चेक करने में। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एनालिटिकल क्वेश्चन। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच विल बी मोस्ट आस्क्ड इन योर एग्जाम। 60-70 मार्क्स का यही होगा। इसमें क्या है, इसमें प्रैक्टिकल भी होगा और थियरी भी होगा। तो क्या करना है, ऊपर के जो 2 स्टेप्स है उन्हें कंबाइन करना है। पहले आप आंसर ढूंढ लो सॉल्व करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, और फिर जो थियरी हमें एक्सप्लेन करनी है वो आंसर को हमें एक्सप्लेन करना है वो आप एक्सप्लेन कर दो। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक डाउट पूछते हैं कि सर देयर आर सो मेनी वर्ब्स दैट आई यूज, इवैल्यूएट, सजेस्ट, रिकमेंड, कंपेयर, ये वो, सर हम समझे कैसे? एक चीज याद रखना, एग्जाम में वो जो पूछेंगे ना वो आपको वहां पे इजीली समझ में आ जाएगा। इसीलिए यू नीड नॉट वरी एट ऑल। They will ask you in such a language that you will be able to write it easily. If they ask you that evaluate this option, तो हमें क्या करना है, वो ऑप्शन को सॉल्व करना है और फिर इवैल्यूएट करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको दिया है कंपेयर द 2 ऑप्शंस एंड सजेस्ट व्हिच वी शुड इंप्लीमेंट, तो क्या करना है, पहले ए सॉल्व करो, फिर बी सॉल्व करो, फिर दोनों को कंपेयर करो और सजेस्ट करो कि हमें क्या करना है। रिकमेंडेशंस मांगे हैं तो आपके सजेशंस दे दो। हेंस डोंट वरी कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं, वो लोग जो पूछेंगे वो आपको आराम से समझ में आने वाला है। सो एग्जाम में क्या होगा, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नाउ पेपर लिखते वक्त some of the important tips that you must take care while writing the paper. These are very important tips. सबसे पहला है first read what is asked. SCMPE पेपर को अच्छे से क्रैक करके एग्जामिनेशन लाने में this is one of the most biggest pro tip. जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट मत करो, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन के थियरी 2-2, 3-3 पेज के होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो पहले पढ़ना है। पहले क्वेश्चन खत्म होने के बाद जो रिक्वायर्ड होता है ना कि भाई ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं, सो सबसे पहले जाके वो रिक्वायर्ड क्या है ना वो पढ़ लो। जैसे आप रिक्वायर्ड क्या है वो पढ़ोगे ना, उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, तो व्हाट इज द एडवांटेज, यू नो व्हाट इज आस्क्ड. Hence, while reading the question, you are aware that where will you find the answer. For example, in the first question, they have asked some suggestion or a feedback of a particular technique. Now, while you are reading that technique, आपको क्लिक होगा कि ओके यहाँ पे ये पूछा था तो ये उसका आंसर हो सकता है। ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है तो ये सेकंड पैराग्राफ उससे रिलेटेड है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वरना क्या होगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर क्या रिक्वायर्ड है वो पढ़ोगे, फिर वापस क्वेश्चन में जाके आंसर ढूंढोगे। इसलिए आपको एससीएमपी के पेपर में जब भी ये थियरी क्वेश्चंस या एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट रीड व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड देन ओनली यू हैव टू रीड द एंटायर क्वेश्चन. सेकेंड पॉइंट, बी फास्ट फ्रॉम द स्टार्ट, पेपर इज लेंदी. मुझे आईसीआई का आज ही कॉल आया था और उन्होंने मुझे बोला है कि एससीएमपी का पेपर वो लोग लेंदी निकालने वाले हैं, क्योंकि एससीएमपी और कोई भी पेपर हो आईसीआई का वो लेंदी ही होता है। पास्ट अटेम्प्ट्स में भी लेंदी था, आपका पेपर भी लेंदी आने वाला है और आने वाले अटेम्प्ट्स का पेपर भी लेंदी ही होगा। जब भी हमें पता ही है कि आईसीआई पेपर लेंदी ही निकालता है, तो हम स्टार्टिंग से ही फास्ट क्यों नहीं लिखते हैं। एग्जाम में घड़ी लेके जाने की परमिशन है, इसीलिए आपको एग्जाम में वॉच लेकर जानी है। एंड फॉर एवरी मार्क यू हैव 1.8 मिनट्स, यानी अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो वो 18 मिनट्स में कंप्लीट होना ही चाहिए। अ 10 मार्क क्वेश्चन हैज टू बी कंप्लीटेड इन 18 मिनट्स. हेंस यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर टाइम बाउंड फ्रॉम द स्टार्ट. बी फास्ट फ्रॉम द स्टार्ट, तो आपका पेपर कंप्लीट होगा ही. मैंने सीए फाइनल में 8 पेपर्स दिए हैं. आई हैव अटेम्प्टेड 800 मार्क्स. मैंने एक भी पेपर में एक भी मार्क का नहीं छोड़ा है. क्यों? बिकॉज आई वॉज फास्ट फ्रॉम द स्टार्ट. आई न्यू पेपर लेंदी है, स्टार्टिंग से ही फास्ट लिखो. हेंस ये दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है. थर्ड, स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन यू नो द बेस्ट. जो अच्छे से आता है वही क्वेश्चन से स्टार्ट करो. इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. अगर पहले 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं तो एग्जामिनर नोज दैट नहीं ये बंदा स्टूडियस है, इसे आंसर्स आते हैं, तो आगे के चेकिंग में थोड़ी लीनियंसी मिल जाती है और शायद 1-2 मार्क यहां आपको ज्यादा मिल जाएंगे. फोर्थ, डोंट राइट बिग पैराग्राफ्स. ये मैंने आपको पहले भी कहा, बड़े बड़े पैराग्राफ्स मत लिखो, वो कोई नहीं पढ़ता है. आपको आंसर पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है. सर कोई तो ऐसी थियरीज है जो हम पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमें पैराग्राफ में ही लिखनी पड़ेगी. देन व्हाट टू डू, इफ यू वांट टू राइट द आंसर इन पैराग्राफ फॉर्म, देन मेक स्मॉल पैराग्राफ्स.
3-4 लाइंस का एक पैराग्राफ बनाओ, देन चेंज द पैराग्राफ, अगेन 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ, देन चेंज द पैराग्राफ। लिखो पैराग्राफ में, लेकिन छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ। इससे क्या होगा, इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, ही विल बी हैप्पी टू रीड, उसके लिए वो रीडिंग ईजी हो जाएगा, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द पेपर। Now let's come to one of the important topics, that is how to approach for 1.5 days. ऊपर सर आपने टाइम तो दे दिया that within this time you have to complete that chapter, but how to do that? तो that we'll discuss here। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अहेड। अभी ये 1.5 डेज में कैसे पढ़ाई करनी है, हाउ यू हैव टू स्टडी इन दिस 1.5 डेज। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ वार्निंग, डोंट सॉल्व एनी न्यू क्वेश्चन नाउ। अगर आपने केस स्टडी डाइजेस्ट नहीं किया है पहले स्टडी लीव में, तो ये 1.5 दिन में यू नीड नॉट टच दैट। इफ यू हैवंट सॉल्व्ड आरटीपी, डोंट टच इट नाउ। इफ यू हैवंट सॉल्व्ड एमटीपी, डोंट टच इट नाउ। लेकिन सर अगर एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आ गया तो डोंट वरी, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। अभी अगर आप कोई नया क्वेश्चन लेते हो और वो नया क्वेश्चन डिफिकल्ट निकला तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से आपका पेपर बिगड़ सकता है। इसलिए अभी कोई भी नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो इनफ है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड इज इनफ। अभी जितनी पढ़ाई करी है ना उसको रिवाइज करो। नया क्वेश्चन करके ऐसे भी वो याद नहीं रहने वाला है आपको अभी के लिए, इसीलिए अभी कोई भी नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। यू नीड नॉट टच एनी न्यू क्वेश्चन, आई एम टेलिंग इट अगेन। यू हैव टू जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव डन एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। टेल योरसेल्फ कि मैंने जो पढ़ा है ना उसमें से ही कल पेपर आएगा। इसीलिए अगर ये एटीट्यूड के साथ आप पढ़ते हो, आप ज्यादा रिवीजन करते हो, तो एग्जाम आपका 100% अच्छा जाएगा। नाउ यू विल आस्क मी सर 1 घंटे में चैप्टर 1 कैसे करें, 2 घंटे में चैप्टर 2 कैसे खत्म करें? तो आपको क्या करना है, आपको पूरा चैप्टर अभी पढ़ने बैठना नहीं है। यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्विकली। आपको कॉन्सेप्ट्स एकदम क्विकली रिवाइज करने हैं। क्विकली यानी कैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी बैलेंस स्कोर कार्ड आप पढ़ रहे हो, तो बैलेंस स्कोर कार्ड का पेज आया, आपको पता है इसमें 4 पर्सपेक्टिव है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल, वो जो 4 पर्सपेक्टिव है, आपको ये 4 पर्सपेक्टिव पता है। अभी अंदर का पढ़ने मत बैठो, ओके डन। नेक्स्ट परफॉर्मेंस पिरामिड है, ओके ये डन। नेक्स्ट ये डन, नेक्स्ट ये डन। अभी फास्ट आपको कॉन्सेप्ट्स ग्लांस थ्रू करने हैं। आपका जो थियरी है चैप्टर का वो रफली 25-30 मिनट्स में पूरा ग्लांस हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ट्राई एंड ग्लांस थ्रू मैक्सिमम क्वेश्चंस पॉसिबल। एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं क्विकली, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना वो एक बार आपके आंख के नीचे से निकाल लो। जो जो आपने मार्क की है इंपॉर्टेंट, वैसे क्वेश्चंस को आपको अपने आंख के नीचे से निकालना है। आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने मार्क किया, ये मुझे सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटर पे फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। तभी जाके ये सारे 11 चैप्टर्स और उसके साथ जो केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह है वो सब रिवाइज होगा। तो दिस शुड बी योर अप्रोच। फर्स्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्विकली, और एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है उसके बाद जितने भी हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस आपको फटाफट देखने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखते हो तो क्या पता, एक तो आपको मेथड पता चल जाएगा, उसमें कॉन्सेप्ट एक बार आएगा तो वापस आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और एग्जाम में मॉड्यूल में से 40-50% के क्वेश्चंस आते ही है, तो अगर आपने वो क्वेश्चंस देखे हैं एक बार एग्जाम के पहले तो आप एग्जाम में अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट पैनिक एंड ओवरथिंक। ये 1.5 दिन में हमें पैनिक नहीं होना है, 1.5 दिन में ओवरथिंक नहीं करना है। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन स्टडी लीव में इतना अच्छा होता है, लेकिन इन दिस 1.5 डेज दे पैनिक, दे गूफ अप एंड दे फेल इन देयर एग्जाम्स। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको पैनिक नहीं करना है। लेकिन सर हमें डर लग रहा है, हम क्या करें? डर आपको क्यों लग रहा है? एनालाइज द रीजन। व्हाई आर वी हैविंग दैट फियर? बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई अ पर्सन पैनिक्स। आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो कि सर अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो, अगर मुझे एग्जाम में कुछ याद नहीं आया तो, अगर मैंने जो देखा है वो एग्जाम में नहीं आया तो, अगर एग्जाम में पेपर कुछ अलग ही आ गया तो, अगर। लेकिन ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अगर ये चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा ना, उसमें टेंशन क्या लेने का? ये एक आपका नॉर्मल टेस्ट है, वो ही अज्यूम करके एग्जाम में आपको जाना है। और जो चीजें आपके कंट्रोल में है ही नहीं उसके बारे में टेंशन क्यों लेना? तो वो चीजें तो हमें भूल जानी है। तो सर हमारे हाथ में क्या है? इन योर हैंड इट इज ओनली हार्ड वर्क। आपका SCMP का पेपर रेडी हो गया है,
आपके सेंटर्स में वो पेपर पहुंच गया है। अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करनी है, हार्डवर्क करना है। आपको अभी ये 1.5 दिन में सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आप ढंग से अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, then no one can stop you from clearing this exam because you have given your 110%। इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे भूल जाओ। आपके कंट्रोल में है क्या है? पढ़ाई करना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। आप 6 आवर्स का स्लीप लेना, स्लीप में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो आपके 6 घंटे सोने में चले जाएंगे, 1 आवर आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जाएगा, दैट इज फाइन। 1 आवर मॉर्निंग में आप बात करते हो, प्रे करते हो, विच इज नेसेसरी, वो भी कर लेना। तो 8 आवर्स हमारे ये चीज में जा रहे हैं, लेकिन बाकी के 16 आवर्स यू हैव इन योर हैंड। From this 16 hours, you can easily manage and study for 14 to 15 hours. अगर आप अच्छे से ये 15-16 घंटे पढ़ लेते हो, if you are giving your 110%, then trust me, no one can stop you from clearing these exams. Even ICI cannot stop you from clearing these exams. भगवान आपके साथ है. God does everything for a reason, and वो सबके साथ अच्छा ही करते हैं. अगर आपने हार्डवर्क किया है, then आपके साथ अच्छा ही होगा. इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपका पेपर अच्छा ही जाने वाला है। आपने स्टडी लीव्स में इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी है, अभी बस वो फाइनल इवेंट आ गया है, फाइनल रेस है, फिनिशिंग लाइन आ गई है। यहां आके हमें गुफअप नहीं करना है, 3 घंटे में अच्छे से पेपर लिख के आना है, ताकि हम हमारे नाम के आगे वो जो 2 प्रेशियस वर्ड्स है CA, वो इसी अटेम्प्ट में लगा पाए। इसलिए आई होप ये सारी चीजें आपने याद रखी है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजें है वाइल राइटिंग द पेपर, एंड आपको ये 1.5 डेज में क्या क्या करना है, सब आई होप आपको क्लियर है। आपको एकदम मोटिवेटेड रहना है, काम रहना है, रिलैक्स्ड रहना है, हंसते रहना है, और ये वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना है that I am surely going to clear with flying colors. I am going to score 60+ in SCMP and I am going to become CA। जो भी आपका नाम है वो आगे लिख के जाना। अगर आप कमेंट करके जाते हो और आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, एंड आई एम श्योर कि आप सब फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर होने वाले हो। इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और अगर आपको थियरी रिवाइज करना है यूजिंग बाय मैराथन वीडियो, तो ये ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। मैंने लास्ट टाइम ये लिया था, तो 5 आवर्स में आपके 5 थियरी चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। और अगर आपको एग्जाम के पहले वापस थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, देन हियर इज अ वीडियो दैट यू हैव टू वॉच 1 डे बिफोर एग्जाम। इसमें भी मैंने कुछ ऐसे ही मोटिवेशन की बातें की है जो अभी यहाँ एंड में कही, ताकि आप वापस थोड़े पंप अप हो जाओ और आप अच्छे से जाके एग्जाम लिख पाओ। तो आई होप दैट यू आर गोइंग टू डू वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। ठीक है, मिलते हैं, पेपर अच्छे से लिखना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।